Hello everyone. In this video we will discuss about alkaloids. So last time in the previous video we had started about the topic that is secondary metabolites, right? Secondary metabolites and primary metabolites में हमने main difference discuss किया था, that is secondary metabolites they are not involved in the direct development or growth processes of the plants, whereas the primary metabolites they have direct role in their growth and in their metabolic processes. In the secondary one they have indirect role. So secondary metabolites के अंदर हमारे फर्स्ट आते हैं phenolics, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, एंड वी हैव द terpenes also there. एंड थर्ड कैटेगरी आती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, दैट इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. सो ये जो आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड दैट इनके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी. So this is the main feature of this nitrogen containing compounds, having the nitrogen in their chemical structure, and under this we will study about the alkaloids. Now starting with the alkaloids, firstly we will discuss about the some important terms under this. दिस टर्म एल्केलॉइड इट मीन्स द एल्कली लाइक, ठीक है. इनका जो नेचर है वो भी बेसिक नेचर है बिकॉज दे आर कंपेयर डायरेक्टली टू द एल्कली. सो फर्स्टली द एल्केलॉइड टर्म इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन केमिस्ट दैट इज कार्ल F.W. मिजनेरिन. 1819 में इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी. एंड अकॉर्डिंग टू हिम alkaloids का मतलब यही था that they are alkali like and defined as the basic nitrogen compounds which are isolated from the plants. So alkaloids के मेन स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो मेन यही है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गए इनके स्ट्रक्चर में, एंड दीज आर द स्ट्रक्चरली डाइवर्स ग्रुप. And in the heterocyclic ring, it can be possible that not only one nitrogen will be present, there can be more than one nitrogen atoms in the structure of the alkaloids. They are derived from the plant sources and they are alkaline in the nature. The next is about the chemical properties of the alkaloids. In that, firstly, यहाँ पे हम बोल रहे हैं that they are alkali like, they are बेसिक इन नेचर. रीजन क्या है इनके बेसिक होने का, दैट बिकॉज ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम. फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास कोई एल्केलॉइड है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है, राइट. यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है. नाउ दिस नाइट्रोजन हैव लोन पेयर्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर्स दे आर कंसिडर्ड एज बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट, नाइट्रोजन जो है अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल हम प्राइमरी एल्केलॉइड्स बोलेंगे व्हेन वी हैव दिस कॉम्बिनेशन, दैट इज द RNH2. RNH2 का मतलब है R जो है वन एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और उसके साथ आपका NH2 प्रेजेंट है. एग्जाम्पल अंडर दिस इज द नोरएफेड्रिन. सेकेंड, they can be secondary where we have two alkyl groups and along with that we have NH. Example is the ephedrine. Then tertiary where we have three alkyl groups with the nitrogen. Example is atropine. Then quaternary ammonium where we have the four alkyl group with the ammonium, and the example is tubocurarine. Then अबाउट देयर बेसिसिटी, तो इस पूरे ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी एंड क्वाटनरी हैं, इनमें अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो जो आपका सेकेंडरी है दे हैव मोर बेसिसिटी कंपेरेबल टू द अदर्स. सो सीक्वेंस क्या बना आपका, फर्स्टली वी हैव दिस सेकेंडरी फॉर्म, देन द प्राइमरी वन, एंड लास्टली वी हैव द टर्चरी. सो इन दिस सीक्वेंस देयर बेसिसिटी बेसिकली प्रेजेंट. अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो वीक बेस जो है दैट इज द कैफीन, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एट्रोपिन,
Amphoteric is morphine. And lastly, we have neutral alkaloid, that is colchicine. Now next we will discuss about some physiological active alkaloids used in the modern medicines. So यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कुछ ऐसे alkaloids की which are originated from the different parts of the plant. ठीक है, कौन से part से कौन सा alkaloid मिल रहा है और उनका function क्या है, हम उसके बारे में discuss करेंगे. So firstly, examples under this. वन साइड यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गन और द पार्ट विच इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्किलॉइड, देन कौन सा प्लांट यूज किया गया है, देन वी हैव द एल्किलॉइड एंड लास्टली वी विल डिस्कस द फंक्शन. सो फर्स्ट है आपका प्लांट इफेड्रा को यूज करके, इफेड्रा का सिर्फ एरियल पार्ट, ठीक है, इफेड्रा प्लांट का सिर्फ एरियल पार्ट यूज करके हम इफेड्रिन एल्किलॉइड बना सकते हैं. एंड function of this ephedrine alkaloid can be used in the treatment of the asthma. Then next is by using the leaves of tea plant we can prepare the caffeine, which is a CNS, that is the central nervous system stimulant. Then we have the roots हम रोल्फिया प्लांट की यूज कर सकते हैं, रोल्फिया को हम सर्पगंधा भी बोलते हैं. एंड एल्केलॉइड्स जो यहाँ से प्रिपेयर होते हैं दैट इज द रेज़ापाइन. एंड फंक्शन इज इट इज़ अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि जिसमें बीपी का इशू रहता है जिन पर्सन में, तो उनमें ये प्रेफर की जाती है बिकॉज दिस इज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. Then by using the bark of cinchona tree, we can prepare the alkaloid quinine, and this is very important as this is the anti-malarial drug. ठीक है, ये जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मोस्टली आपका कई बार ना गेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. ये अभी जो मैंने बाक वाला रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा गया है. सो दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट. देन नेक्स्ट वी हैव द सीड में अगर हम प्लांट की बात करें, वी यूज द नक्सवेमिया एंड द एल्किलॉइड विच कैन बी प्रिपेयर्ड इज द स्ट्राइकनिन विच इज अ CNS stimulant. Then by using the fruit of the black pepper we got the alkaloid paparin which is a antispasmodic. Antispasmodic का मतलब होता है that to relieve the spasm of the involuntary muscles. Then by using the latex of the opium plant we can prepare morphine, and morphine जो है आपका they are the analgesic. Analgesic का मतलब होता है to relieve the pain. ठीक है, मोस्टली ये जो मॉर्फिन है दे आर यूज्ड एज द पेन किलर. सो एनाल्जेसिक मीन्स टू रिलीव द पेन. और मॉर्फिन के साथ आप ऐड कर सकते हो, एक और एग्जांपल है इसमें, दैट वी कैन प्रिपेयर द कोडीन आल्सो फ्रॉम दिस. एंड codeines they are antitussive. This codeine is antitussive. Antitussive का मतलब होता है that to relieve cough, यानी कि मोस्टली ये जो हमारे कफ सिरप्स होते हैं वहाँ पे कोडीन का यूज किया जाता है. सो कोडीन इज एंटीट्यूसिव एंड इट इज यूज्ड टू रिलीव कफ. नेक्स्ट वी कैन यूज द एंटायर प्लांट ऑफ द विंका रोजा. ठीक है, सदाबहार भी हम इसे बोलते हैं नॉर्मली. तो विंका के प्लांट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्किलॉइड विनक्रिस्टिन, एज वेल एज वी कैन प्रिपेयर द विनब्लास्टिन फ्रॉम इट. ठीक है, तो विनक्रिस्टिन के साथ विनब्लास्टिन आता है. और फंक्शन दैट दीज आर द एंटी कैंसरस, एज वेल एज एंटी कैंसरस के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज एंटी नियोप्लास्टिक. ठीक है, तो ये मोस्टली कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है. सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट फिजियोलॉजिकली एक्टिव एल्केलॉइड्स. हमने एक तरफ उनका ऑर्गन पार्ट देखा, कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं हम प्लांट्स का, कौन सी एल्केलॉइड प्रिपेयर हो रही है, और फाइनली उनका फंक्शन क्या है. दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर CSIR. पर गेट में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं. एज वेल एज विद दैट आपके क्वेश्चन जो होते हैं कुछ डिजीज़ के रिलेटेड होते हैं, प्लांट डिजीज़ के रिलेटेड, तो वो भी आपके डायरेक्ट मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन होते हैं. Nextly, we have some more important alkaloids, and one of them is the atropine.
ठीक है। जो ये एट्रोपिन है, इट इज यूजली प्रिपेयर्ड बाय extraction from the plants. We can use the plant Atropa belladonna in this, and as well as the Dhatura stamonium, and it is used to treat the bradycardia, means जो लो हार्ट रेट होता है उसको ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन को सजेस्ट किया जाता है. And along with that, it is a anticholinergic drug. Anticholinergic drug का मतलब होता है it blocks the action of the neurotransmitter. It is capable to blocks the action of न्यूरोट्रांसमीटर, और बेसिकली यहाँ पे हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे, दैट इज द एसिटाइल कोलिन के ये एक्शन को ब्लॉक करता है. देन नेक्स्ट, इट कैन एक्ट एज द एंटीडोट टू नर्व गैस पॉइजनिंग. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा कैम्टोथेसिन. दिस इज अनदर एल्किलॉइड. इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैम्टोथिका acuminata, and it is a topoisomerase inhibitor. Topoisomerase inhibitor में firstly you should know that what is topoisomerase. So if you remember this topoisomerase, you studied this enzyme name in the replication process, right? हेलिकेज जो है वो अनवाइंडिंग करता था, एंड देन टोपोआइसोमरेज जो है इट प्रिवेंट्स द सुपर कॉइलिंग. ठीक है, यही इसका मेन फंक्शन था, इट कैन प्रिवेंट्स द सुपर कॉइलिंग. सो दिस camptothecin act as the inhibitor for the topoisomerase, and it can used as the chemotherapeutic agent in the treatment of the cancer, that is the leukemia. Next is cocaine. Cocaine can be obtained from the leaves of the Erythroxylum coca plant, and Erythroxylum novogranitans can be used. It is a stimulant drug and act as the euphoriant. Euphoriant का मतलब होता है when a person has a feeling of the joy and happiness after getting these drugs or getting the cocaine. Now next we will discuss about the classification of the alkaloids. So these alkaloids are divided into 4 categories. Firstly we have biosynthetic alkaloid, then we will discuss about the taxonomical alkaloid, then pharmacological alkaloids, and as well as we will discuss about the chemical alkaloids. So all these are divided on the basis of different factors like their presence in the plant category, their role, and their chemical structure. So firstly we will discuss about the बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन. सो बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन जो है आपकी, इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रिकर्सर. ठीक है, यानी कि जो हमारे एल्केलॉइड हैं वो कौन सा प्रिकर्सर यूज करके बन रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रिकर्सर यूज्ड फॉर एल्केलॉइड सिंथेसिस, यूज्ड फॉर alkaloid biosynthesis. On that we get the different biosynthetic alkaloids, right? And जो भी आपके alkaloid होंगे which are biosynthesized by the same precursor, they are brought under the same group. For example, मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A1. A1 is the precursor for B and also precursor for the C. तो इन B और C को हम एक सेम ग्रुप में रखेंगे अंडर द A1. यानी कि जिस प्रिकर्सर को यूज करके जो भी आपके पास एल्केलॉइड्स बन रहे हैं वो आपके एक सेम ग्रुप में प्लेस होते हैं. Now we will see some examples under this. First example I am taking here is of ornithine. ठीक है, तो ornithine क्या होता है आपका, ये एक अमाइनो एसिड है, राइट? तो ऑर्निथिन को यूज करके एज अ प्रिकर्सर यूज करके दो आपके एल्केलॉइड्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं. वन इज द ट्रोपेन एंड सेकेंड वन इज द पायरोलिडिन. So these two are the alkaloids which can be prepared by using ornithine as the precursor. So example under the tropane is atropine,
and as well as with that cocaine. These are the two examples under the tropane. एंड पायरोलिडिन के अंदर आपका एग्जाम्पल आता है निकोटिन. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. देन सेकेंड एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे लाइसिन, another amino acid. It can be used for the synthesis of alkaloid. Under this again we have two categories. First is quinolizidine. First is quinolizidine, and under this we have the example that is the lupinine. Then under second category we have piperidine and pyridine. Piperidine and pyridine are two examples. Under this we have conine and lobeline. ये दोनों आपके पाइपरिडिन एंड पिरिडिन के अंडर एग्जाम्पल आते हैं. देन थर्ड है आपका एग्जाम्पल दैट इज द ट्रिप्टोफेन, अगेन अमाइनो एसिड. दिस ट्रिप्टोफेन will produce the indole alkaloids, और indole alkaloids के अंदर आपके एग्जाम्पल आते हैं दैट इज द विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, रेजरपाइन. ऑल दीज कम अंडर द ट्रिप्टोफेन. ठीक है, दो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए. देन इसी के साथ आपकी सेकेंड कैटेगरी आती है एक क्विनोलिन. क्विनोलिन के अंदर आपका एग्जाम्पल आ जाता है एंटी मलेरियल ड्रग का दैट इज द क्विनिन. along with that we have cinchonin, right. then next अगर हम एक और अमाइनो एसिड ले लें दैट इज द हिस्टिडीन. so in histidine we have imidazole, and imidazole के अंदर आपका आता है एग्जाम्पल दैट इज द pilocarpine. then we can also use the tyrosine, and tyrosine के अंदर आपके आते हैं दैट इज द आइसोक्विनोलिन. आइसोक्विनोलिन के अंदर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे मॉर्फिन आ गया आपका. ठीक है, देन कोडीन आपका एग्जाम्पल इसी के अंदर आता है. देन पेपेवरिन आता है आपका इसमें, एंड अलोंग विद दैट नार्कोटिन ऑल्सो कम्स अंडर दिस. सो ये आपके सारे क्या हैं, बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हमने प्रिकर्सर क्या है उसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं. आपके प्रिकर्सर सेम है तो उन दोनों को हम सेम कैटेगरी के अंदर प्लेस करेंगे, और प्रिकर्सर्स अलग है तो वो अलग कैटेगरी में आते हैं. और मोस्टली जितने भी आपके एल्केलॉइड्स हैं इनमें जो मेन प्रिकर्सर का काम करता है दैट इज द एल अमाइनो एसिड्स. और मोस्ट कॉमन जो आपके प्रिकर्सर्स है वो मैंने यहाँ पे 5 आपके लिख दिए हैं दैट इज द ऑर्निथिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन एंड द टायरोसिन. Now next we will discuss about the second classification, and that is your pharmacological classification. So in pharmacological classification, so in this they are based on the pharmacological response और pharmacological use. तो ये अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. जैसे आप कोई भी जो हमने ये अभी रूट लीव्स कौन सा पार्ट लेके हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने उसके साथ उनका फंक्शन भी रिप्रेजेंट किया है. तो उनमें से आप कोई भी 4-5 एग्जाम्पल ले सकते हो और वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैफीन ले लें, ठीक है, तो कैफीन जो है इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द टी लीव्स which is a CNS stimulant, right. देन अगर हम फार्माकोलॉजिकल यूज के हिसाब से देख रहे हैं तो हम एंटी कैंसरस का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, किसी भी एंटी कैंसरस एल्केलॉइड का आप यहाँ पे नाम देख सकते हो. जैसे यहाँ पे टेक्सोल प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द विन, एंड अलोंग विद दैट विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन फ्रॉम द विंका.
राइट, ये आपके एंटी कैंसरस होते हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने एंटी हाइपरटेंसिव वर्ड यूज़ किया था, तो एंटी हाइपरटेंसिव में से आप एग्जाम्पल उठा सकते हो डॉल्फिया का, फ्रॉम वेयर वी कैन प्रिपेयर द लीजरपाइन। ठीक है, ये भी इसी के अंडर एग्जाम्पल आएगा आपका। देन यू कैन ऑल्सो यूज द एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग जो अभी हमने बात की, बाग से प्रिपेयर किया जाता है ऑफ सिनकोना ट्री, एंड फ्रॉम दैट वी गॉट द एल्केलॉइड दैट इज द क्वेनिन। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस के हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज किया है, दैट इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने जो भी पिछले टेबल में एग्जाम्पल किए विद देयर functions, you can take from them any 4 to 5 examples. Now next classification is the taxonomical classification. ठीक है, आपकी थर्ड जो आ जाती है that is taxonomical classification. Right, so taxonomical classification में क्या है, this is based on their distribution in plants. ठीक है, उनका प्लांट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी गॉट दिस टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सो मोस्टली देखा गया है कि जो फैमिली है सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी में काफ़ी आपके एल्केलॉइड्स हमें इसमें से मिलते हैं, जैसे ट्रोपेन कैटेगरी के एल्केलॉइड्स आते हैं इसमें, जो हमने एग्जांपल देखे, एटोपेन, देन हाइकोसेन, हायोसामिन। ठीक है, ये सारे आपके ट्रोपेन कैटेगरी के जो भी एल्केलॉइड्स है, दे कम्स अंडर द सोलेनेसी फैमिली, एंड सम स्टेरॉइडल एल्केलॉइड्स आल्सो फ्रॉम द सोलेनेसी फैमिली। इसके अलावा हमारी एक और फैमिली आती है दैट इज द पेपिलिनियसी। राइट, सो पेपिलिनेसी फैमिली से भी हमें कुछ एल्केलॉइड्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल पायरोलिडिन, एंड सेकेंड इज द क्विनोलाइजिडिन। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी के जो एल्केलॉइड्स है बोथ कम फ्रॉम द पेपिलिनेसी फैमिली। इसके अलावा कुछ और फैमिलीज भी हैं जिनसे हमें डिफरेंट एल्केलॉइड्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव एपोसाइनेसी। ठीक है, वी हैव एपोसाइनेसी फैमिली, एंड ऑल्सो वी हैव यूबिएसी फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या लिखोगे, दैट टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट फैमिलीज they give different type of the alkaloid and you can place 2 or 3 example under the each family. Right, then taxonomical classification में ही हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी alkaloids हैं जो basically their name is preferably according to their name of the genus. ठीक है, जो उनके जीनस का नाम है उसी के हिसाब से उनके एल्केलॉइड के नेम है। फॉर एग्जांपल हम इफेड्रिन वर्ड यूज कर रहे हैं, इफेड्रिन इज ए एल्केलॉइड यूज फ्रॉम द इफेड्रा प्लांट। तो यहाँ पे देखो आप, इफेड्रा जो जीनस है प्लांट का, उसी के नेम के ऊपर आपके एल्केलॉइड का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वेयर द एल्केलॉइड नेम इज डायरेक्टली फ्रॉम द नेम ऑफ द जीनस ऑफ द प्लांट फ्रॉम इट इज डिराइव्ड। So this was your third classification, that is the taxonomical classification. Now we will discuss about the next, that is the chemical classification. So next one is chemical classification. So chemical classification is, from the name it is clear that it is based on the chemical स्ट्रक्चर्स। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर्स कैसा है उनका, उसके हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं इनटू द 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज द हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप आता है आपका हेटेरोसाइक्लिक, एंड वी ऑल्सो कॉल दीज एज द टिपिकल एल्केलॉइड। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट एज टिपिकल एल्केलॉइड। ऑन अनदर साइड वी हैव द second one category, that is the atypical alkaloid, or we call them as the non heterocyclic. ठीक है, this is the second non
heterocyclic, or we can call them as the atypical alkaloid, or another name for them is the proto-alkaloids. ठीक है, proto-alkaloid, and we can also call them as the biological amines. So these are the four names for this, right? Non-heterocyclic, atypical, proto-alkaloid and the biological amines. ना दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपके हेट्रोसाइक्लिक alkaloids हैं और typical alkaloids हैं, they contain the nitrogen in the heterocyclic ring. जो main इनके chemical structure में heterocyclic ring है, उसी में nitrogen present होगा. For example, I am taking one example under this. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने structure बना दिया एक. ठीक है, this structure is for इंडोल एल्किलॉइड्स. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने इंडोल एल्किलॉइड्स के लिए. एंड दीज इंडोल एल्किलॉइड्स फॉर्म द रेजरपाइन. ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको पीछे बता दिया. रेजरपाइन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, राइट. तो यहाँ पे इस हेट्रोसाइक्लिक एल्किलॉइड में आप देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो विद इन द रिंग प्रेजेंट है. ठीक है, ये जैसे भी इनके रिंग्स प्रेजेंट होंगे, मोनोसाइक्लिक हैं या इनके स्ट्रक्चर जो हैं डाईसाइक्लिक हैं, इनके उसी रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, राइट. सो दीज आर कॉल्ड एज द हेट्रोसाइक्लिक और टिपिकल एल्किलॉइड्स. जबकि अगर हम मोनोसाइक्लिक या नॉन हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उनके एलिफैटिक चेन्स में प्रेजेंट होती है. जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, इस तरह से हमारे पास इफेड्रिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, इस तरह से अगर हमने एक एल्किलॉइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे ये NH2 प्रेजेंट है. सो यू कैन सी हियर द नाइट्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द रिंग, इट इज प्रेजेंट इन इट्स साइड चेन्स. So that's why we call them as a non-heterocyclic, where the nitrogen is present in their aliphatic chains. ठीक है, तो इनके अंडर आपके फिर अलग अलग एग्जाम्पल्स आ जाते हैं. जैसे इसी के अंडर एग्जाम्पल आ गया आपका एक टेक्सोल का. ठीक है, टेक्सोल अभी मैंने आपको बताया एंटी कैंसरस होता है अलॉन्ग विद द विंका रोजा प्लांट. ठीक है, जिससे हम विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन बनाते हैं. देन इसी के साथ आपका आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज द इफेड्रिन. Then next one is the colchicine. Then we also have here the erythromycin, which is a antibiotic. It also come under this erythromycin. And one we have hordenine. ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल आते हैं नॉन हेट्रोसाइक्लिक के अंदर. Now we will see some examples under the heterocyclic. So heterocyclic alkaloid में आपका आता है ट्रोपेन, जिसके अंदर हमारे पास एट्रोपिन एंड कोकेन आती है. Then quinoline, quinine, quinidine and cinchonine comes under this. Then isoquinoline, papaverine, morphine and codeine comes under this. Then indole, indole के अंदर आपका विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन आएगा. Then we have pyridine and piperidine. Under this we have nicotine and the piperine. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑफ heterocyclic alkaloids. Now next we will discuss about the functions of the alkaloids. So in last we are going to discuss about the functions. First main function is they are protective against insect and herbivores, and this is due to their bitterness and toxicity. Then they are also the product of detoxification. ठीक है, जरूरी नहीं है these secondary metabolites are released during the defense and all. ये sometimes as a waste product भी release होते हैं from the plant part. Then reservoir of the protein synthesis. They are also the source of nitrogen in case of the nitrogen deficiency in the plants.
and as well as they have important role in the antimicrobial defense, यानी कि कुछ फंगस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है इनका काफ़ी important रोल होता है. Then they have pronounced pharmacological activities. This is the main. ठीक है, काफ़ी मेडिसिन में अभी हमने काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए थे कि इनका जो है आजकल काफ़ी इन पे रिसर्च भी हो रही है. सो वी कैन गेट मोर एंड मोर एल्किलॉइड एंड कैन बी यूज्ड इन द मेडिसिन्स फॉर द treatment of the cancer, for malaria, for BP problems, for heart rate problem. ठीक है, तो अलग अलग फंक्शंस हैं यहाँ पे इनके alkaloids के. So this is all about the topic alkaloid. Stay tuned for the more videos and please share and subscribe the channel. Thank you.